Hello students, I welcome you to today's class. We are carrying on with this chapter, climate, chapter 4. A lot of points we have completed. Actually, a lot of points we have completed. We have started this chapter whereon we have completed, we have understood the major phenomena, the major factors that are affecting the climatic conditions. These climatic conditions are creating a very different kind of an environment on the Indian subcontinent as well as in the world and in the nearby areas. What are the major factors? Temperature. Actually, it's not factors. These are the things which determine the climate or the weather. टेम्परेचर देख के पता चलता है, प्रेशर से पता चलता है, wind system is there. All these things when we see which direction the wind is blowing, what is the condition of the atmosphere, what is the condition of the temperature, all these things when we see, we understand the climatic conditions. Here we have the climatic controls, the topic that we had started in the last video. We are talking about the climatic control. What are the factors that are controlling the climate? गर्मी हो जाती है, ठंडी हो जाती है, बारिश होने लगती है, हवा तेज चलती है, ठीक है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रही है. Everything is dependent on this climatic conditions, climatic controls. Just now that we were talking about आंधी आ जाती है, तूफान आ जाती है, बारिश आ जाती है, all these things that are happening in that, it is because of these conditions. First we talked about latitude, then we talked, first point was latitude, second point was altitude, next was pressure and wind systems, distance from the sea, ocean currents and relief features. 6 features were there, 6 points were there, which are having a complete control on the climatic conditions. Got it? We talked about this. इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की. The major controls that are happening, ठीक है, these things are playing important role in that. Latitude के बारे में we talked yesterday. We took the help of this also. Latitudinal extent is from Run of Kutch, ठीक है, Run of Kutch, ROK, to the Tropic of Cancer. We are lying on the Tropic of Cancer. ये आप देख रहे हो यहाँ पे इक्वेटर. You can see the equator here. बिल्कुल बीच में. इसके ऊपर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू द मिजोरम एंड हाफ ऑफ द कंट्री इज बिलो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड हाफ ऑफ द कंट्री इज अबव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. So half of the country is witnessing a tropical type of a climate. Climatic condition, climate का भी नाम दिया गया है ना, कहाँ पे किस तरह का क्लाइमेट है. इट इज अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस प्रिवेलिंग ओवर दैट रीजन. उस जगह पे जिस तरह का वेदर कंडीशन है उसी के हिसाब से हम क्लाइमेट डिसाइड करते हैं. गॉट इट? सो ट्रॉपिकल कंडीशंस आर देयर इन द बिलो रीजन. ये यहां से इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक वी हैड ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड उसके ऊपर में इन द नॉर्दर्न रीजन जहां हिमालयाज है वहां पे वी आर हैविंग सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. गॉट इट? आगे हमको और पता चलेगा. टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज लैटिट्यूड हमने कर लिया. ओके, नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज ऑल्टीट्यूड. यू नो ऑल्टीट्यूड इज अ वेरी सिंपल पॉइंट. आप इसको अच्छे से समझ सकते हो. Second point is altitude, height from a place. Whichever place is witnessing the climate, the climatic conditions. जैसे इंडिया में क्या है, इन द नॉर्दर्न साइड वी हैव द माउंटेन्स, पहाड़ हैं पूरे नॉर्दर्न साइड में.
जिसमें की हाइट इज 6000 मीटर्स। 6000 मीटर्स की हाइट है। इंडिया का कोस्टल एरिया इज ऑल्सो वेरी वास्ट, काफी बड़ा कोस्टल एरिया है हमारे पास। एंड द मैक्सिमम एलिवेशन इज हाइट। गॉट इट? लाइक हाइट, एवरेज हाइट इन इंडिया इज, मतलब सबसे ज्यादा ऊंची जगह जो है 6000 मीटर्स एंड एवरेज हाइट इज, सब मतलब कि लगभग हर जगह जहां पे भी है, दैट इज, प्लीज अंडरस्टैंड, 30 मीटर्स। एवरेज हाइट जो है हमारे यहाँ पे वो 30 मीटर्स है। क्योंकि एक चीज समझो, वी आर इन दिस एरिया, ये जो आप देख रहे हैं द डेक्कन रीजन, हियर वी आर वेरी क्लोज टू दी सी। तो सी में क्या है, वी आर एट अ कंप्लीट लेवल ऑफ सी लेवल। सी लेवल पे वो जगह सिचुएटेड है। पानी अगर बढ़ जाएगा ना तो वहां पे काफी सारे घर डूब जाएंगे। That is also the condition. Yes, the way global warming is going up, the way global warming is happening, many people predict, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि climatic conditions in the coming times will change, काफी सारे बदलाव आएंगे। And ऊपर के साइड में there is Himalayas. Himalayas are there, जिसके वजह से कि cold winds that are coming, बहुत ठंडी वाली जो हवा आती है ना, it is prevented. Himalayas are preventing the cold winds. ठीक है, सेंट्रल एशिया से द कोल्ड विंड्स आर एंटरिंग एंड इट इज एंटरिंग इन द सबकॉन्टिनेंट। इट इज बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स। ये जो पहाड़ी इलाका है ना, कि सब कॉन्टिनेंट हम इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज कवरिंग अ मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे विंटर्स जो है वो थोड़े कम होते हैं। In the hilly area only we are witnessing, temperature about -3, -4 degrees Celsius. But then other places, winter conditions, the temperature goes as low as -60, -70 degrees Celsius. इस तरह से भी temperatures होते हैं. Believe me children, and that's the fact. Got it? तो ये mountains की वजह से क्या होता है, सब कॉन्टिनेंट जो है it is experiencing mild winters. ठीक है, एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया। अब क्या है, द नेक्स्ट जो हमारा एल्टीट्यूड है, इट इज द हाइट दैट इज विटनेसिंग। हमने इसके बारे में जस्ट नाउ वी हैव सीन। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द इंपॉर्टेंट वन, द थर्ड टॉपिक, दैट इज द प्रेशर एंड विंड्स। क्या है, प्रेशर एंड विंड्स। कहां पे कितना हवा का दबाव है, हाउ मच इज द एयर प्रेशर एट अ प्लेस, एंड क्लाइमेट कंडीशंस आर एसोसिएटेड, क्लाइमेट एंड द एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस, उस जगह का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वेदर कंडीशंस है, ये पूरी तरह से बिकॉज ऑफ इट इज गवर्न्ड बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड द सरफेस विंड्स। जो मतलब कि जो सरफेस पे जो हवा चल रही है, द विंड दैट इज ब्लोइंग ऑन द लैंड, इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस। ओके, प्रेशर एंड विंड्स में द मेजर पोर्शन दैट वी विल बी डीलिंग इन इज प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। पहला पॉइंट जो हम करेंगे दैट इज प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। सरफेस, सतह पे जो हवा चल रही है, जमीन पे जो हवा चल रही है, इसके ऊपर में भी हमारे पास देयर इज एयर, हर जगह एयर इज एवरीवेयर। ठीक है, तो वो एयर कैसे चल रही है, उस एयर का मूवमेंट क्या है, दैट इज ऑल्सो डिटरमाइनिंग। सो अपर एयर सर्क्यूलेशन, गॉट इट, अपर एयर सर्क्यूलेशन इज देयर। देन वेस्टर्न, वेस्ट, ये जो देख रहे हो ना, पश्चिम वाला जो है ना, वेस्ट, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। गॉट इट, वेस्ट के तरफ से ये जो हवाएं आ रही हैं, द साइक्लोन्स दैट आर कमिंग, इट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ डिफरेंस, एंड द वन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज
tropical cyclones. Got it? Tropical cyclones that are there, cyclonic disturbances. क्योंकि देखो आंधी तूफान जब आता है, when there is hail storm and I mean windy weather, काफी तेज जब हवाएं चल रही होती हैं, it has an impact on the life and on the conditions of the people staying in these areas. इन सारी जगहों पे जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ पे इसका बहुत असर पड़ता है. इंडिया कहाँ है? इंडिया जो है इट इज इन द नॉर्थ ईस्टर्ली रीजन. प्लीज, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स इंडिया है. अभी वर्ल्ड मैप पे इसको समझो. इन द ग्लोब हियर इज इंडिया, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज ईस्ट. तो ऑन द ग्लोब इधर से जो हवा चल रही है, द एयर सर्कुलेशन, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, this is globe, this is equator, this is tropic of cancer, here is India. तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है. ठीक है, ये तो इक्वेटर है, यहां पे आप ईस्ट समझो. So the winds that are blowing from this side, it is having an effect on the Indian climatic conditions. North easterly winds, ये नॉर्थ ईस्ट से जो हवा आ रही है. Did you get it? These winds कहां से आता है? हाई प्रेशर बेल्ट. दिस रीजन एज अ हाई प्रेशर बेल्ट. पोल्स की तरफ ठंडी है, उतनी गर्मी वहां पे नहीं है. सन रेज आर नॉट रीचिंग देयर, सो द एयर देयर इज हैवी. हाई प्रेशर बेल्ट इज देयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. तो ये जो नॉर्थ से जो हवा चल रही है, जो साउथ की तरफ आ रही है, द विंड्स दैट आर ब्लोइंग इन द नॉर्थ एंड कमिंग टुवर्ड्स द साउथ. ठीक है, नॉर्थ है, नॉर्थ से हवा साउथ की तरफ जब बह रही है, तो दिस इज डिफ्लेक्टेड टू राइट ड्यू टू कॉरियोलिस फोर्स. अभी ये जो हवाएं आ रही हैं, ये घूम जाती हैं टुवर्ड्स राइट. ये किस लिए होता है? बिकॉज ऑफ द वन फेनोमेना, कॉरियोलिस फोर्स. Got it? क्यों? Because it moves towards the equatorial low pressure area. ये इक्वेटर है, यहां पे लो प्रेशर है. हाई प्रेशर एयर इज कमिंग फ्रॉम हियर, लो प्रेशर इज गोइंग फ्रॉम हियर. इधर की हवा जब होती है तो ये हवा घूम जाती है. दिस गेट्स डिफ्लेक्टेड. ओके, एंड this deflection that is caused, it is because of the Coriolis force. अभी Coriolis force क्या है? Coriolis force is, वो अभी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे इसको. ये इस तरह से समझो कि वेदर कंडीशंस पे जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, जो कि हम आपको क्लास 6 में पढ़ाते हैं, दैट इज एक फेनोमेना जो आप यहां पे हमेशा मिस कर जाते हो, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. हम बड़ी बड़ी चीजों के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं ना कि तो आपको पता ही होगा, 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, सो यू माइट बी डेफिनेटली नोइंग अबाउट इट. ओके, तो जो डेफिनेटली नोइंग अबाउट इट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो. नाउ व्हाट हैपेंस, इसको आप फिर से मैं समझा रही हूं आपको मैं. कॉरियोलिस फोर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दी कॉरियोलिस फोर्स. ठीक है, great kind of an explanation is here. You need to understand the Coriolis force. Got it? ठीक है, Earth is here. This is equator, Tropic of Cancer. India is here. ठीक है, Northern Hemisphere. ठीक है, यहां पे this is East. एंड ये नॉर्थ ईस्ट से एयर इज कमिंग थ्रू दिस साइड. पोल से हवा आ रही है एंड सम एयर इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड. गॉट इट? तो ये जो साउथवर्ड्स के तरफ, दे ब्लो साउथवर्ड्स
एंड साउथ के तरफ जो हवा आ रही है इट मूव्स टू दिस डायरेक्शन, राइट। ओके, अभी जो राइट के तरफ ये जो मूवमेंट हो गया है, दीज विंड्स आर कैरिंग, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड ये लैंड के ऊपर इट इज ब्लोइंग, सो दे ब्रिंग लिटिल, कभी कभी थोड़ी बहुत बारिश आती है इसके साथ, कभी बिल्कुल भी बारिश नहीं रहती है। तो इंडिया जो है इट शुड हैव बीन एन एरिड लैंड, सूखा पड़ना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन सूखा नहीं पड़ता है। हाँ, रीजन है उसके पीछे भी, देयर इज रीजन, विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट ऑल्सो, डोंट वरी। ओके, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के तरफ हवा बह रही है। एंड कॉरियोलिस फोर्स का क्या चीज है, प्लीज अंडरस्टैंड, इसका एक्सप्लेनेशन तो आपको याद करना ही पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द phenomena of Coriolis force, that is क्योंकि explanation is there in your book, I'm just explaining it to you that it is an apparent force, ठीक है, which is caused by Earth's rotation, caused by Earth's rotation, ठीक है। अर्थ का मूवमेंट इज देयर, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया, रोटेशन रोटेशन रोटेशन, आई एम मूविंग ऑन माई ओन एक्सिस, रेवोल्यूशन हो चक्कर आ गए, रेवोल्यूशन अभी जब मैं व्हेन अभी इसके पीछे से होते हुए व्हेन आई विल कम, ठीक है, तो रोटेशन तो हो ही रही है, अर्थ रोटेशन इज देयर। तो Coriolis force that is there, it is responsible for deflecting winds towards the right in northern hemisphere. ये जो मूवमेंट हो रहा है, this movement that is happening, हवा तो चल ही रही है, wind is already blowing, तो ये जो रोटेशन की वजह से what is happening कि Coriolis force क्रिएट होता है यहां पे, Coriolis force is created here, is responsible for deflecting winds, responsible for deflecting winds to north. Okay, you need to mention deflecting winds to, क्योंकि हवा चल रही है, दो हवा मिलती है और फिर टकरा के राइट वर्ड हो जाती है। ओके, इट गोज टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पूरी तरह से ये डिफ्लेक्शन हो रहा है। So and towards left in the southern hemisphere. North में क्या होता है, towards the north it is moving to right and towards the south it is moving to left. एक तरफ लेफ्ट मूवमेंट हो रहा है, एक तरफ राइट मूवमेंट। अभी क्या होता है ना कि अर्थ सरफेस पे लेफ्ट एंड राइट का भी कंफ्यूजन हो जाता है, isn't it? तो प्लीज अंडरस्टैंड कि इस तरह से when earth is there, तो the air that is moving this side, इधर जो एयर मूव कर रहा है that is towards the right and इधर जो एयर मूव कर रहा है that is towards the left. Okay, तो right in northern hemisphere and left in southern hemisphere. इसका एक और नाम है and it is also called as फेरेल्स लॉ। क्या कहते हैं, फेरेल्स लॉ। ओके, तो दिस फेरेल्स लॉ दैट इज देयर, ये जो विंड का डिफ्लेक्शन हो रहा है टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्थ, टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द साउथ, दिस इज ऑल्सो, ये क्या हो रहा है, सब कुछ अर्थ के मूवमेंट के, भाई जो चीज भी मूविंग होगी
उसमें कुछ ना कुछ तो उसका असर पड़ेगा ही. एंड अर्थ इज कंटिन्यूअसली मूविंग. So because of this movement, such a big change is happening. India में the pressure conditions are unique. Winters में क्या होता है? High pressure area is in the north of Himalayas. I hope you have understood the Coriolis force. इससे ज्यादा क्या explain करूं? How do I explain it? थोड़ा सा you have to think it scientifically. बिकॉज थोड़ा साइंटिफिक माइंड से नहीं सोचोगे तो इसको समझ पाना इज वेरी डिफिकल्ट. सो यू नीड टू अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ साइंटिफिक माइंड टू इट. लाइक इन विंटर air is moving. Please understand there is high pressure area to the north of Himalayas. In winter, high pressure area to नॉर्थ ऑफ हिमालयस. हम शुरू से ऊपर से शुरू कर रहे हैं ना. विंटर में द वेदर कंडीशंस दैट आर देयर, वी आर स्टार्टिंग राइट फ्रॉम हियर. ये हिमालयस है टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयस. गॉट इट? कोल्ड ड्राई विंड्स आर ब्लोइंग. कितनी ठंडी सर्दी में आप देखो कितनी जल्दी स्किन ड्राई हो जाती है. द स्किन गेट्स वो ड्राई, खिंचता रहता है हमेशा. इट इज बिकॉज ऑफ दीज विंड्स. एंड ओशन के ऊपर में देर इज लो प्रेशर एरिया. ओके, नॉर्थ ऑफ हिमालयस एंड लो प्रेशर एरिया इन साउथ. साउथ आप ये देख रहे हो, यहां तो समुद्र है ना पूरा. ऑल द ओशन इज हियर. एक तरह बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, तो ऑल दीज ओशंस आर देयर. तो यहां पे लो प्रेशर है, हिमालयस पे हाई प्रेशर है. तो समर में क्या होता है? लो प्रेशर एरिया पूरे, मतलब इन ऑल मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ एशिया देयर इज लो प्रेशर एरिया. एंड नॉर्थ वेस्ट में भी, हमारे यहाँ इंडिया में भी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है, नॉर्थ वेस्ट, ये राजस्थान गुजरात वाला, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है. राजस्थान गुजरात वाला जो एरिया है, एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया साउथ इंडियन ओशन के ऊपर जो है साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में एयर मूव करता है. तो एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया बिकॉज सदर्न इंडियन, ये जो साउथ इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन के साउथ में देयर इज एन एयर दैट इज बीइंग ब्लोन. एक अलग तरीके की हवा चल रही है विच इज टूवर्ड्स द साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन. ये दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट. ये साउथ है, ये ईस्ट है. तो इधर की ओर एक हवा चल रही है. देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एयर मूवमेंट टू दिस साइड. एंड ये क्या होता है? क्रॉसेस टू द इक्वेटर. इक्वेटर है यहाँ पे, इक्वेटर से निकल के ये हवा इधर आ रही है. फ्रॉम द लोअर एरिया इट इज कमिंग टूवर्ड्स द साउथर्न रीजन ऑफ इंडिया, एकदम टिप पे. तो इट टर्न्स राइट टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरियाज ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. जहां भी लो प्रेशर एरिया है वहां पे इट टर्न्स. मूवमेंट की वजह से हवा इधर उधर मूव कर रही है. तो गर्म हवा जो है, वार्म ओशंस आर देयर, heat is there over the oceans. They take some moisture and bring widespread rainfall over the mainland of India. कायदे से देखो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आर कमिंग. नॉर्थ और ईस्ट यानी हिमालयस और वो जो उधर वाला जो एरिया है उत्तराखंड एंड ऑल दैट, उधर से हवा आ रही है. तो हमारे यहाँ बिल्कुल सूखा पड़ना चाहिए. लेकिन द विंड दैट इज कमिंग फ्रॉम द इक्वेटर, जो इक्वेटर के पास से जो विंड आ रही है उसका असर हो रहा है हमारे यहाँ पे, जिसके वजह से कि खूब अच्छी सी बारिश हो रही है. गुड रेन्स आर बीइंग कॉज्ड हियर. गॉट इट? ये जो हवा चल रही है, दिस इज कॉजिंग रेन्स एंड दिस इज ब्रिंगिंग अ वेरी नाइस वेदर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. अब हमारे इंडिया में ये जो बारिश हो रही है, प्लीज अंडरस्टैंड there is the upper air circulation ठीक है, in this region. This region मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट.
इक्वेटर की तरफ से हवा आ रही है, इंडिया के ऊपर उसका असर पड़ रहा है, एंड इट इज इन दिस रीजन, एंड it is dominated by a westerly flow. By a westerly flow. Got it? तो ये जो हवा चल रही है वेस्ट, हिंदी में समझाऊं इसको आपको मैं, एक आप देखोगे जाड़े में अक्सर क्या होता है ना, जाड़े में बहुत तेज हवा चलती है. In winters, there is a very different kind of an air blowing from the western side, which is called as पछुआ हवा. पश्चिम की तरफ से चल रही, it is blowing from the west. West is पश्चिम, east is पूरब. तो पश्चिम की तरफ से जो हवा चल रही है उसको कितनी बार लोग कहते हैं पछुआ हवा चल रही है. तो ये जो different kind of an air by a westerly flow, and this is called as, क्या कहते हैं इसको, jet stream. It is called as jet stream. Got it? तो ये this flow that has happened, and jet stream कहां पे है? It is located above 27 degree 30 degree north latitude. ये जो हमारा लैटिट्यूडनल पोजीशन है, इसमें 26 डिग्री टू 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ के पास, नॉर्थ लैटिट्यूड के पास ये हवा चल रही है. तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स. जेट किसको कहते हैं? जेट बड़ी तेज जहां पे हवा चलती है, विच इज वेरी फास्ट, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, उसको जेट कहते हैं. तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. ये जो हवा चल रही है टुवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वेस्ट के तरफ से ये हवा आ रही है. एंड इंडिया में क्या होता है, ये जेट स्ट्रीम जो है कहां पे ब्लो कर रहा है? इट इज ब्लोइंग टू दी नॉर्थ ऑफ हिमालयस, प्लीज आई एम सॉरी, साउथ ऑफ हिमालयस. हिमालयस के नीचे नीचे में ये वाली हवा चलती है, पूरे साल चलती है. ऑल थ्रू द ईयर यू हैव द जेट स्ट्रीम्स, एक्सेप्ट इन समर. समर में ही खाली जेट स्ट्रीम नहीं मिलता है हमको, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. तो ये जो वेस्ट की तरफ से, पश्चिम की तरफ से जो साइक्लोन्स आ रहे हैं, the cyclonic disturbances that are there, that is witnessed in the north and northwestern parts of the country. हवा वेस्ट के तरफ से आ रही है एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इसका असर महसूस होता है. समर में क्या होता है ना, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स मूव नॉर्थ ऑफ हिमालयस. समर में ये नॉर्थ चले जाते हैं, विंटर्स में ये हवा जो है वो साउथ की तरफ बहते हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ सन. तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम is called as subtropical easterly jet stream. It is blowing over the peninsular India and 14 degree north during the summer months. Got it? Jet streams are there. Jet streams next class में फिर से करेंगे. एक बार ये आपको बुक में भी दिखा देती हूँ. I'll just show it to you in the book. It would be more clear. Got it, children? चलो देखते हैं. Let's see. Students, just now we discussed about the Coriolis force. एंड आई वॉन्टेड टू शो वन थिंग इन हियर. एक चीज़ मैं ये जो आपको यहाँ दिखाना चाहती थी कि इट इज़, पहला तो आप ये समझो कि मूवमेंट की वजह से ये फोर्स आ रहा है. मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स, मोस्ट ऑफ द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन द अर्थ सर्फेस, इट इज़ बिकॉज ऑफ रोटेशन. एंड कॉरियोलिस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, डिफ्लेक्टिंग विंड्स आर देयर. The winds that are that twist and turn. The wind that takes a different kind of a turn for towards the right. देखो इसमें एक चीज़ आपको जो समझना है ना, इसमें you have to understand the concept of right and left. Okay, तो आप जब देख रहे हो तो this is right for you and this is left for you.
लेकिन व्हेन यू सी इट फ्रॉम इन फ्रंट, तो वहां पे जब आप ऐसे करके खड़े होंगे, व्हेन यू स्टार्ट स्टैंड इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। लेफ्ट एंड राइट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना बहुत जरूरी है। And then you need to mention about the Farrell's law. Please mention about the Farrell's law. Jet stream क्या है? Two concepts we have studied today. एक तो Coriolis force, दूसरा jet stream. Narrow belt of high altitude. 12,000 मीटर के अबव में ये एक एरिया है विच हैज़ गॉट द वेस्टर्ली विंड्स, मतलब वेस्ट से जो हवा आ रही है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ दैट। कहाँ पे? इन द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में ये हवा जो चल रही है, इट इज क्रिएटिंग अ डिफरेंट सिचुएशन। तो वहाँ क्या है ना, 110 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चल रही है, जिसके वजह से इट इज़ वेरी हार्श ब्लोइंग विंड। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड, बिकॉज देखो कितना 184 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से विंड्स चल रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज जेट स्ट्रीम। And most constant mid latitude subtropical jet stream is, मतलब लगातार it is blowing, that's why it is called as most constant. Okay, western cyclonic disturbances are there, subtropical easterly jet streams are there. These jet streams are causing a different kind of a weather altogether. Okay, easterly jet streams, westerly jet streams. East के तरफ से जो हवा आ रही है easterly, and west के तरफ से जो हवा आ रही है westerly. We'll do it in detail. एक बारी और मैं इसको समझा दूंगी in the next video. Till then children, thank you so much and all the best to you.